Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. اللہ کے اثرات ہیں. سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے. چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے. پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے. اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے, خوشحال رہ سکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, پریشانی پیسوں کی ہو, پریشانی صحت کی ہو, آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو, بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو, کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں, یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں, یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں, اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. راسک جیمز اینڈ جویلرز. راسک جیمز اینڈ جویلرز. Only one visit can change your life. ناظرین آداب, میں آپ کا دوست احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا بھی حل جان سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر تشریف فرما ہے دنیا کی جانی مانی عظیم ہستی اور ایسٹرو جیولوجسٹ ڈاکٹر ایم رضا صاحب, جن کو کنگ آف جیمز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. شکریہ جناب. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جب بھی اس پروگرام میں کال کریں تو ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا اور اپنا نام بتائیے. جس کے بارے میں بات کرنا ہے, جس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے, ان کا نام بتائیے, ان کی تاریخ پیدائش بتائیے اور وقت بھی بتا دیجیے تو مہربانی ہوگی. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جو نیچے نمبر اسکرول ہو رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جن ناظرین کے نمبر اگر نہیں لگ پا رہا, کال نہیں لگ پا رہا ہے, تو دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کر کے ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ان سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. جو حیدرآباد کے ناظرین ہیں اور جو بنگلور کے یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ان سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایم رضا آپ لوگوں کا اس جواہرات کے کرشمہ پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے کل کی عید تھی ہمارے ہندو بھائیوں کی اور تیلگو بردرز کی عید تھی, تیلگو والے بھائیوں کی, خاص کر ہمارے ساؤتھ انڈیا میں بنائی جاتی ہے. یوگادی کی عید تھی, سال نو کہا جاتا ہے. ہم اپنی طرف سے, اپنے بھائی ڈاکٹر روشن صاحب کی طرف سے, ہمارے والد صاحب کی طرف سے اور ہمارے راسک جیولرز ٹیم کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ سب خوشحال رہیں, سب پریشانیاں جو پچھلے سال میں گئی ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو, زندگی میں خوشحال رہیں. اور دوسری بات بتاتا چلوں, جواہرات کے سلسلے میں, جواہرات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے. اگر جواہرات کے بارے میں بتا دوں, جنت کی نعمتوں میں سے شمار ہیں یہ جواہرات. دنیا کے تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جواہرات. انسان کی پریشانی کو دور کرنے کا ایک وسیلہ ہیں یہ جواہرات. حکم ہے اللہ کا, نعمت کا وسیلہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس نعمت کے وسیلے سے زندگی میں خوشی ملے گی, کامیابی ملے گی. یاقوت کے بارے میں بتا دوں, ہمت و توانائی بخشتا ہے. موتی کے بارے میں بتا دوں, سکون بخشتا ہے, راحت بخشتا ہے. پکراج کے بارے میں بتا دوں, گیان دیتا ہے, نالج دیتا ہے, کریٹیویٹی دیتا ہے. یمرال کے بارے میں بتا دوں تو بدھی مطلب حافظے کو اسٹرانگ کرتا ہے, انٹلیکچوئل دیتا ہے, انسان کو چالاک بنا دیتا ہے. کمیونیکیشن اسکلز, بات کرنے کی بات چیت میں اضافہ کر دیتا ہے. نیلم کے بارے میں بتا دوں, ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. کورل کے بارے میں بتا دوں, انسان کو ہمت دیتا ہے, ڈر سے نجات دلاتا ہے. اسی طریقے سے ہیرے کے بارے میں بتا دوں, جیسے ہم نے وائٹ سفیر کہتے ہیں, اس کے بارے میں بتا دوں. انسان کی زندگی میں خوشحالی رہتی ہے, مطلب جنسی جو یہ ہوتا ہے اس میں انسان مطلب توانائی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, انسان اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. اس حساب سے ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, نیچر ہے, مطلب قدرتی چیز ہے, اسے کہتے ہیں جواہرات. انشاءاللہ تعالیٰ اس جواہرات کے پہننے سے زندگی میں خوشحال رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں کر رہے ہیں. کچھ بھی آواز معذرت چاہوں گا, آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں, آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. آئیے ناظرین ایک دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ہمارے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال. نام بتائیے. ہاں نام مندرجیت شیخ. ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز دیکھیے ایکچولی اگر جو لوگ بھی کال کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورک کی پلیس پر کال جی کیجیے محمد گا. مندرجیت شیخ. دیکھیے ہم ناظرین سے خواہش کرتے ہیں کہ جب آپ کو لائن ملتی ہے, اتنا خوش قسمت کا ایک مرحلہ رہتا ہے لائن ملنا, کیونکہ لاکھوں لوگوں کی شکایت ہے کہ لائن نہیں ملتی. جب لائن مل جاتی ہے تو نیٹ ورک کے چھیتر میں آ کر بات کیجیے گا, کیونکہ نیٹ ورک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بات کرتی ہے تو سنائی صحیح طریقے سے نہیں دیتا, تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اور جواب بھی نہیں دے پائیں گے. تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ناظرین سے جس کو بھی لائن مل جاتی ہے تھوڑا باہر آ کر بات کر لیں, نیٹ ورک کی جگہ پر انشاءاللہ بات کر لیں گے تو بات اچھے سے ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عباس علی بات کر رہا ہوں فلک نما سے. عباس علی, آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی وہ میری ہی بات کرنا ہے. اپنی تاریخ پیدائش بتائیے. سر میں ڈیٹ آف برتھ ہے 10 فروری 1995. جی وقت بتائیں گے؟ وقت فرائیڈے 12 PM. 12 PM. 12:30 PM. 12:30 PM. جی کیا جاننا چاہتے ہیں, کیا پریشانی آپ کو ہے؟ ڈاکٹر امام رضا صاحب سے آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم عباس علی صاحب. وعلیکم السلام صاحب, خیریت؟ الحمدللہ میرے بھائی یہ ای ٹی وی کا سیٹلائٹ چینل ہے, دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. فلک نما کون سی سٹی سے بول رہے ہیں آپ؟ سر فلک نما وٹاپلی. کہاں پہ بولیے, ہم تو جانتے ہیں لیکن آپ بتائیے کون سی سٹی سے بول رہے ہیں آپ؟ حیدرآباد سر. حیدرآباد سے بول رہے ہیں, بتائیے. سر وہ ڈیٹ آف برتھ 10/1/1995. سمجھ گیا, کیا جاننا ہے اپنے بارے میں؟ سر میں جو ہے کیریئر سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں, ڈگری سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوا. ڈگری میں کیا لیے ہیں آپ؟ BCom کمپیوٹر. ماشاء اللہ. تو سر میں نے اکاؤنٹنگ کا بھی پیکج کیا ہے اور جاب کے لیے بھی سرچ کر رہا ہوں, بٹ کہیں لگ نہیں رہا ہے جاب. جاب میں تھوڑا مشکلات آ رہی ہیں. ہم سب سے پہلے بتا دیں جس دن پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا اور آپ کا جو اسینڈنٹ تھا ٹارس کا, چالاک ہیں, مینیجر اسکلز ہیں, ٹیم لیڈر ہیں, ہارڈ ورکر ہیں, ہیلپنگ نیچر ہیں, یہ خصوصیات آپ میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے جو BCom کا جو سلیکٹ کیا ہے بہت اچھے سے کیا, کیونکہ ٹارس کا جو لارڈ ہوتا ہے وینس بلانکس ٹو دا مینجمنٹ, بلانکس ٹو دا اکاؤنٹس, بلانکس ٹو دا فائنانس. تو یہ حساب سے آپ نے جو لیا ہے آپ کے لیے مفید رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. BCom کے بعد آپ MBA بھی کر سکتے ہیں. رہی جاب کی بات, کیونکہ سیکنڈ اس کا جو مالک ہوتا ہے میرکری تھوڑا گردش میں ہے, ریٹرو گریڈ کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دل میں ہے دکھ لیکن اوپن نہیں کہہ سکتے. جاب میں تھوڑا مشکلات آتی ہیں, تھوڑا آفیزہ کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, بیک لاگس بھی زیادہ آنے والے ہیں. اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ میرکری کو اسٹرانگ کیجئے گا, جس کے لیے آپ کو کرنا ہے منیمم 3 کیرٹ کا ایمرالڈ پنا کہا جاتا ہے, 3 کیرٹ کا بنا کر پہن, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خوشحال رہو گے. وش یو آل دی بیسٹ. یہاں پر بتا دوں انہوں نے کہا فلک نما دنیا بھر میں جانتے ہیں. ہم نے کہا کہ سٹی کا نام بتا, کیونکہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے پروگرام. آئی تھنک 66 کنٹریز میں جاتا ہے یہ, تو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, تو لوگوں کو معلومات ہے کہاں سے بات کریں. یہ حساب سے اس لیے ہم نے پوچھا کہ کہاں سے بول رہے ہیں. یعنی عباس علی کی پڑھائی انشاءاللہ کامیاب ہوگی, یہ ایمرالڈ پہننے کے بعد زندگی میں خوشی ملے گی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے اپنا. میرا نام ابراہیم ہے. میں میری بیوی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اپنی بیوی شہناز سلطانہ ہے. رفیہ سلطانہ. شہناز سلطانہ. شہناز سلطانہ. جی تاریخ پیدا بتائیے. شہناز سلطانہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ان کی تاریخ پیدائش بتائیے, ڈیٹ آف برتھ. ان کا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے, ٹائم بھی معلوم نہیں. ان کی امی کا نام آپ کو اقبال النساء. کیا نام ہے؟ اقبال النساء. جی جی ٹھیک ہے, کیا جاننا چاہتے ہیں ایک بار بات کیجیے ڈاکٹر السلام صاحب. علیکم ابراہیم صاحب. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بینگلور سے بات کر رہا ہوں. بینگلور سے بول رہے ہیں, بتائیے کیا جاننا ہے اپنے بیوی کے بارے میں؟ جی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. طبیعت خراب رہتی ہے, پریشان ہے, سکون کھو چکے ہیں, وعلیکم مشکل السلام. میں. ارے میرے بھائی ٹی وی چھوڑ دو, ٹی وی کو آف کرو, موبائل میں بات کرو. آپ فون رکھ دیجئے گا, ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. ناظرین سے خواہش کرتا ہوں کہ جب لائن مل جاتی ہے ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیجئے گا, یا تو ٹی وی آف کر دیجئے گا کچھ سمے کے لیے بات کرنے تک. تو انشاءاللہ دیکھیے, جیسے کہ ابراہیم صاحب نے آپ نے جو کال کیا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں جاننے کے لیے, آپ نے نام دیا ہے شہناز سلطانہ اور ممی کا نام دیا ہے اقبال النساء. اس نام سے دیکھا جائے تو مونسن جو بنتا ہے
कैप्रिकॉन का, जिसका जो लॉर्ड होता है सैटर्न का, साथ में 5वें स्थान का जो मालिक होता है 6वें स्थान का मेर्क्यूरी है, थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से रोगों की बीमारी रहेगी, थोड़ा वीक रहेंगे, खाने पीने में मतलब सही से खाना भी नहीं खा पाएंगे, थोड़ा मुश्किलात रहेंगी, सुकून भी आप खो चुके हैं, साथ में सैटर्न भी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानियां बहुत आ रही हैं, घर में सुकून नहीं है, मुश्किलात हैं, फाइनेंशियली ट्रबल्स भी हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बीवी के लिए आप एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेयर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। आप बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं, जहां पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब लोगों की सर्विस दे रहे हैं, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं जानकारी के लिए, मजीद जानकारी, क्योंकि हम यहाँ जो शोज में बताते हैं ये कर 2 मिनट, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनसे सामने जाकर राबता हासिल कर सकते हैं। रही बात आपकी बीवी की सेहत की, एमराल्ड और नीलम पहनाने के बाद 2016 जून के बाद जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इब्राहिम साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं गुजरात से बोलती हूँ, सूरत। सूरत से। नाम बताइए अपना। हाँ, मेरे शोहर का नाम है फारूक, मोहम्मद फारूक, आपको और उनकी बर्थ ऑफ डेट है 6/11/1960। 6/11/1960। डेट ऑफ बर्थ फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रही हैं। डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश। 6/11/1960। साहे मतलब कितनी? साहे मतलब इंग्लिश में बोल दीजिए आप। इंग्लिश में बोल दीजिए। जी जी इंग्लिश में बोल दीजिए। क्या सन बता दीजिए, सन किस सन में पैदा हुए? हेलो जी जी किस सन में पैदा हुए आपके शौहर? हेलो। जी हेलो। सलाम अलैकुम बहना, सलाम अलैकुम। जी डॉक्टर साहब क्या बोलना चाहिए? हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छी हूँ। मेरे शोहर का काम है। मैं समझ गया, फारूक नाम है उनका। नवंबर 11 तारीख 19 कितना है वो? 1950 है, 60 है, 40 है, कितना है वो? 6/11/1960। साहिल मतलब क्या होता है? हम नहीं समझ नहीं पा रहे हैं हम। 1915। 1915 60 रॉन्ग है मेरी बहन। और नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप जो बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं जो लाइन कनेक्शन कर रहे हैं उसमें ख्वाहिश करता हूँ सबसे पहले पूछ लीजिएगा, उनका इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि लोग लाखों लोग देख रहे हैं, लाइन लेते हैं, तो सही से डेट ऑफ बर्थ पहले एक बार पूछ लीजिएगा और सही से बताइएगा, क्योंकि 1915 क्या होता है और साहे हम तो जानते नहीं हैं, तो बहरहाल उनका लाइन मिला लेकिन हम बता नहीं सकते। चलिए डॉक्टर साहब दूसरा कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोडेकनाल, तमिलनाडु कोडेकनाल से बोल रहा हूँ। जी नाम बताइए अपना। फयाज अहमद। फैयाद, आपको अपने बारे में बात करना फैयाद साहब? हाँ जी। तारीख पैदा बताइए। नहीं, पैदाइश तारीख मालूम नहीं मेरे को, मेरे को पढ़ाई नहीं थी कुछ हमारे माँ जी बाप जी की। अपनी वालदा साहबा का नाम बताइए। राजा बेगम। राजा बेगम। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम फैयाज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम एक्चुअली कश्मीर से हैं, मगर इधर तमिलनाडु कोडेकनाल में बिजनेस के लिए आए हुए हैं। कश्मीर से हैं आप? बताइए क्या जानना। अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिला आपको? जी नहीं। परेशान है, डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि नाम से और आपकी माँ के नाम से देखा जाए, जैसे कि आपने कहा फैयाज अहमद, आपका जो मून साइन बनता है विरगो का, जिसका लाड है 12वें घर में, जिसकी वजह से कर्जे में डूबेंगे, परेशान रहेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है। साथ में वीनस खराब है, वीनस खराब होने से क्या होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं रहता, थोड़ा परेशानी रहती है, डिस्टर्बेंस भी ज्यादा रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए आप मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, वीनस को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको पहनना है एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक व्हाइट सफेद सफेद पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, बिजनेस में डेवलपमेंट मिलेगा, तरक्की की दुनिया में जाओगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मोहसिन बात कर रहा हूँ, स्टेट राजस्थान सिटी जोधपुर से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मोहसिन, काफ़ी टाइम के बाद आपका सवाल आया। अब बताइए प्रोग्राम कैसा लग रहा है मोहसिन? प्रोग्राम तो खैर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जितनी तारीफ करें ना
जी। तो उसकी बहुत कम है, क्योंकि वो तो दिखता ही आ रहा जितने टाइम बाद में, जितने टाइम से मैं कॉल कर रहा हूँ, जी जी और आज कॉल कनेक्ट हुआ है तो इतनी तादाद बढ़ गई देखने वालों की। तो ऑब्वियसली ये आपके सामने है जी। कि 5 से 6 महीने बाद मेरा कॉल कनेक्ट हुआ है, तो बहुत बेस्ट वाला प्रोग्राम चल रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हिम्मत अफजाई का और प्रोग्राम की तारीफ करने का। आप क्या जानना चाहते हैं मोहसिन साहब, आपको अपने बारे में सवाल करना है या किसी और के बारे में? बिल्कुल भाईजान, मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। बिल्कुल, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 9 जनवरी 1992। 1992। वक्त बताएंगे मोहसिन? बिल्कुल सर, थर्सडे का डे है और 10 o'clock से 10:30 के बीच का टाइम है। सुबह AM। अच्छा, सुबह 10 से 10:30 के बीच में जी आई थिंक, मुझे कंफर्म तो नहीं है, 10 से 10:30 के बीच में है कम्प्लीटली। ठीक है मोहसिन साहब, आपकी 10 खुश बजे है, जी 10 जी 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 बजे। मोहसिन साहब, आपका कॉल जो है तकरीबन 5 महीने के बाद लगा और ये आपकी खुशनसीबी है कि आप डॉक्टर MM रजा साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? सुपर सर, आपकी दुआएं हैं और हमेशा दुआएं चाहूंगा सर। इंशाल्लाह जरूर रहेंगे। बताइए क्या जाना है अपने बारे में? सर एक्चुअली मुझे एक तो अपनी डेस्टिनी के बारे में बताइए सर। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि एक तो मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। ओके। और मुझे इस बारे में बताइएगा, और किस नाम से शुरुआत होगी, अगर ये भी बता दे तो मेरे लिए बहुत बड़ा हिंट हो जाएगा, क्योंकि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ सर, बेहद प्यार करता हूँ। और मेरा करियर कैसा रहेगा सर? इंशाल्लाह जरूर हम बताएंगे। देखिए मोहसिन साहब, आप जैसे कि आपने जो सवाल किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए, आपका जो असेंडेंट है एक्वेरियस का, मून साइन है एक्वेरियस का, आप में क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, आप खुददार इंसान हैं, थोड़ा जिद्दी हैं, जल्दबाज हैं। रही बात जैसे आपने जो सवाल किया है प्यार के बारे में, लव मैरिज तो आपकी नामुकम्मल है, मतलब मुश्किल है, लव मैरिज तो होने वाली नहीं है, अरेंज मैरिज होगी। जैसे कहा कि नाम बता दीजिए, इंशाल्लाह मीम के नाम से कोई भी लड़की जिंदगी में आ सकती है, क्योंकि आपका जो 7वें घर का जो मालिक होता है लीवो को ज्यादा से जो होता है मीम के नाम से आते हैं। ये हिसाब से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी लड़की मिलेगी, खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। लेकिन थोड़ा मुश्किलात हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक ब्लू सफ़र नीलम कहा जाता है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक हेमराल्ड पन्ना कहा जाता है 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर बता दो लोगों के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत से लोग आते हैं प्यार के मामले में, वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो चाहते हैं हम उनको बताना है। अभी मैं यहाँ से आने से पहले एक लड़की आई थी, वो किसी लड़के को चाहती है, मैंने जैसे पूरा देखा, कहा कि होने वाली नहीं है, तो रोना शुरू कर दी वो। डॉक्टर साहब कैसा नहीं होगी, क्या नहीं होगी? अरे यहाँ पे होने वाली नहीं है, थोड़ा मुश्किलात है, डिस्टर्बेंस है, कुछ करो ना, होने वाला होना है, कुछ करना है उसके लेवल के। देखिए हर चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम जवाहरात दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जो अपने जैसे अपने फेवर में बता दो कि ये होने वाला, आप बोल दो, ऐसा बोल दो, अपने आप को बोलना, मतलब हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो हो जाएगा बोल के। तो ये हिसाब से हम सच्चाई बताएंगे, सच्चाई कड़वी लगेगी थोड़ी देर के लिए, बाद में आप रियलाइज होंगे, फिर ढूंढ कर आएंगे साहब आपने बताया था, अभी खुशहाल हो, परेशानी से दूर हो। क्योंकि एक बार जब कर लेते हैं, अगर सूटेबल रहा हम बोल देते हैं कि हो सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जायचे में क्लियरली दिखाता है, अगर हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ प्लानिंग अगर स्ट्रांग रहा, इंशाल्लाह लव मैरिज भी अच्छी हो जाएगी। नहीं, बहुत से लोगों का क्या होता है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज होने की वजह से क्या होता है, प्यार होता है लेकिन शादी नहीं होती, तो ये हिसाब से मुश्किलात होते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने मानी मशहूर दुनिया की मशहूर हस्ती डॉक्टर MM रजा साहब। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नजमा बोल रही हूँ कश्मीर से। जी आपको अपने बारे में बात करना नजमा साहिबा? नहीं, मुझे अपनी भतीजी के बारे में, अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, मेरे कॉल लग जाती, शुक्र है अल्लाह का। जी जी अब भतीजी का नाम बताइए। जी इसका 23 जून 1992 जी जून के दिन पैदा हुई है, 2:40 पर। भतीजी मेरी है, इसके बारे में जरा जी 2:40 रात में या दोपहर में? दिन को हुई है, दोपहर में। अच्छा, उनका नाम बता दीजिए भतीजी का। कम नहीं बता सकूंगी मेरे, सॉरी। तो डॉक्टर साहब चले गए ना। अस्सलाम वालेकुम नजमा साहिबा। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। आप कैसे हैं बताइए? बड़ा शुक्र है अल्लाह का। आए ना अभी हमारे यहाँ आए, तशरीफ लाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत खुश लग रही हैं आप, खाने के लिए। बहुत खुश हैं आप। हाँ बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत शुक्र है अल्लाह का लग जाती। अल्लाह मेरे बाह में कुछ पता नहीं क्या बात है। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। आमीन आमीन। आपको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे हैं आप। आमीन मैं तो आमीन। इंतजार करती पूरा हफ्ता लगी हुई थी कॉल पे। अचानक मिली, इतनी खुशी हुई, समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ आपसे। समझ गया, आपकी भतीजी की शादी के बारे में बात करना है। जी उसकी शादी के बारे में समझ गया। क्या हुआ, अपनों में होगी, गैरों में होगी, कब तक होगी, प्लीज बता दीजिए। अपने में होगी, यारों में होगी, घर में होगी, बाहर होगी, नॉर्थ में होगी, ईस्ट में होगी, साउथ में होगी, इंशाल्लाह बता देंगे। देखिए आपकी जैसे कि भतीजी का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, मंगल के दिन जन्म हुआ है उनका, और उनका जो असेंडेंट है लिब्रा का है। दिखने में खूबसूरत होती हैं, थोड़ा चालाक है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहता है, सेल्फ हार्मिंग कहा जाता है। जब गुस्सा आ जाता है, सामने जो चीजें उसको फेंक देती हैं, मुट्ठियों को कस देती हैं। मतलब बहुत चालाक हैं, खुददार हैं, जिद्दी हैं, और सेल्फ अर्निंग में खुद भी पैसा कमा सकती हैं। मतलब कुछ जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इनके जो जायचे में यहाँ पे दिखा रही है, वीनस थोड़ा खराब है। जब वीनस खराब हो जाता है, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड है, वीनस का खराब होना तो परेशान, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब कब तक करता है? शादी होने तक परेशानी है। शादी का इंशाल्लाह जिंदगी खुशी रहेगी। जैसे कि आपने जो सवाल किया है क्या घर में होगी या बाहर होगी, तो यहाँ पे दिखा रहा है रिश्तेदारों में शादी होगी, रिलेशन में होगी, मतलब जान पहचान में होगी, अपने में होगी, अपनों में होगी, या यारों में होगी। मतलब जहाँ पे आप जानते हैं, जिनको पहचानते हैं, रिश्तेदारों में इसकी शादी होने के इम्कानात ज्यादा है। कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे यहाँ एक मिसाल होती है, घर में है लड़का, शहर पूरा ढूंढ रहा, कुछ बताते हैं ना, तो ये हिसाब से लड़का तो अब इंशाल्लाह मिल जाए इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, साथ में मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। मेर्क्यूरी के लिए एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहन इंशाल्लाह ताला। 2016 नवंबर इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपका सवाल मिल गया होगा। जो नाज़रीन प्रोग्राम में नहीं शरीक हो पा रहे हैं, वो कल सुबह ये प्रोग्राम हमारा 9 बजे देख सकते हैं। और आपका कॉल अगर किसी वजह से नहीं लग पा रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहा है टीवी पे, आप नोट करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम जीनत बेगम है। मुझे मेरे लड़की के बारे में पूछना है। बेटी का नाम बताइए। शिफा आलिया। शिफा आलिया। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम संगारेड्डी से बात कर रहे हैं। संगा रेड्डी से। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। जी 1 दिसंबर 1994। 1994। वक्त बताएंगी कुछ? वक्त सुबह के 9 से 10 के बीच में। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जीनत बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे है मेरी आपका बहन? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के दुआ से ही प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात है, शिफा आलिया के बारे में क्या जानना है? जी मेरी लड़की का नाम शिफालिया है। उनके फ्यूचर के बारे में जानना था, मतलब उन्होंने आगे जाके क्या कर सकते हैं। अभी वो उन्होंने पढ़ रहे हैं और उनकी शादी के बारे में जानना है। पढ़ाई क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी शादी वो? कब तक हो जाएगी? पढ़ाई क्या कर रहे हैं वो? जी पढ़ाई उन्हें एमटेक कर रहे हैं अभी। माशाल्लाह। देखिए बहन, आपकी बेटी पैदा हुई जुमेरात को, मालूम है आपको? जी थर्सडे का दिन था। हाँ थर्सडे का दिन था, जुमेरात का दिन था। और बच्ची का जायचे में देखा जाए तो जैसे कि आपने कहा, एमटेक हायर स्टडीज भी दिखा रहा है, आला तालीम है। क्योंकि उनका जो असेंडेंट है देखा जाए तो सजिटेरियस के जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर, आला तालीम है, आगे बढ़ेगी, बहुत ऊंचा मकाम पे जाएगी इंशाल्लाह। उनका जो सामने जो उनका जो प्रोफेशन रहेगा, एज ए प्रोफेसर आगे बढ़ सकती हैं, अच्छे प्रोफेसर बनेंगी या लेक्चरर बनेंगी इंशाल्लाह ताला, अच्छा नाम कमाएंगी। लेक्चरर बनेंगी, बाद में प्रोफेसर बनेंगी, अच्छा नाम कमाएंगी। मतलब टीचिंग फील्ड में इनका अच्छा रहेगा जिंदगी में। रही बात अगर जिसका जो भाग्य स्थान कहा जाता है, किंग मेकर का जो कहा जाता है, 90 घर का जो मालिक होता है, सन नीचे गिरा हुआ है, थोड़ा बच्ची की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली यूट्रस का प्रॉब्लम रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उससे बाहर निकलने के लिए सन को डेवलप करना है। साथ में शादी में खुशी मिलने के लिए, शादी ऑन टाइम होने के लिए जुपिटर को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको करना है पुकुराज येलो सफ़ेद कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। रही शादी की बात, 2017 नवंबर में शादी होगी, नेक्स्ट ईयर नवंबर में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट।
बच्ची का जायज़ एकदम स्ट्रांग है, जी। लेक्चरर बनेंगी, उनका जो फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ेंगी, वो टीचिंग फील्ड में मुफीद रहेगा। जी। एज ए गाइडर हम गाइड कर सकते हैं। जी हर इंसान की ज़िंदगी में हम एक गाइडर की तरह होते हैं, जो हम गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक हुनर होता है, एक टैलेंट होता है। उस टैलेंट को बहुत से कुछ लोग पहचान लेते हैं, ज़िंदगी में आला तालीम पे आगे बढ़ जाते हैं, ज़िंदगी में ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोगों को वो टैलेंट बाहर नहीं निकलता, भटकते रहते हैं। कभी वो काम किया, हाथ में नहीं लगा, कभी वो काम किया, हाथ में नहीं लगा, ज़िंदगी ज़ीरो, नतीजा 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, क्योंकि उनके जायचे के हिसाब से उन्होंने काम चुना नहीं। वो नहीं जानते कौन सा काम सुटेबल, गाइडेंस सही नहीं मिल पाई, गाइडेंस नहीं मिलता। तो इस हिसाब से इस लड़की का जैसे कि शिफा आलिया का जो अगर बता देंगे तो प्रोफेसर बनेगी इंशाल्लाह, PhD करेंगे, डॉक्टरेट तक आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो बुक्स भी लिख सकते हैं, इतना उनको मकाम है, अल्लाह ताला ने उनको मकाम बख्शा है इंशाल्लाह ताला। उसको पूरा पाने के लिए पेरेंट्स को चाहिएगा, हम जो जब बताया, एक येलो सफ़र रो भी इंशाल्लाह ताला। इस जवाहरात की नेमत, इसके वसीले से अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर साहब, अगर जैसे अभी अगर सवाल नहीं नोट, जैसे आपने जवाब बताया, अगर कुछ नोट नहीं कर पा रही हैं आप लोग, हमारे नाज़रीन, अगर कुछ नोट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नंबर तो आपके पास है, आप उस पर कॉल कर सके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और रूबरू उनसे बात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद अली बोल रहा हूँ पटना से। आपको अपने बारे में बात करना मोहम्मद अली साहब? जी 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 जी, मैं अपने बारे में बात करना चाह रहा था जी। कारोबार वगैरह जी। मैं तारीख पैदाइश बताइए, सबसे पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 3 जनवरी 1977। वक्त पैदाइश का वक्त? पैदाइश का वक्त तो याद नहीं है जी, सैटरडे शनिचर। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम, भाईजान कैसे हैं आप? हेलो भाईजान बताइए कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, आपकी दुआ से। आप ठीक है? जनवरी 16 1977। हेलो 3 जनवरी 3 जनवरी है, 16 जनवरी है? 3 जनवरी 1977। ओके, क्या जाना है अपने बारे में? जानकारी लेना था, ये बिजनेस वगैरह जो अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार में मंदी है। अखबार का काम करते हैं आप? जी। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं? जमीन का काम होता है मेरा, जमीन का काम करते हैं आप? जी जी देखिए भाईजान, आप जिस दिन पैदा हुए मंडे का दिन था, उस दिन जी जी मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका। और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो सजिटेरियस का है, उसमें जो मेर्क्यूरी मतलब गर्दिश में बैठा हुआ है, तो 7वां घर थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में धोखा होगा, मुश्किलात होंगे, कोऑपरेशन में थोड़ा मुश्किलात होंगे, टेंशन होगा, थोड़ा जल्दबाज है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि 90 घर का जो मालिक होता है, सन भी खराब है, साथ में मून भी खराब है। जब मून खराब हो जाता है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, तो वो तो आपको सूटेबल नहीं रहेगा। बरस में 1 साल में मुश्किल से 1-2 काम निकलेंगे, बस उतना ही, आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़े मैं आपको बिजनेस बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आप एजेंसी ले सकते हैं, रिलेटेड टू बुक्स की ले सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी कहा जाता है। पढ़ाई के सिलसिले में जितने भी जो होते हैं, जैसे कि स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्कूल के बैग्स होते हैं, ऐसा एजेंसी आप लेकर कर सकते हैं। स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, बुक्स का लाइब्रेरी का काम कर सकते हैं, अखबारात का काम कर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं। ये सारे आपको सूटेबल रहेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सन को डेवलप करना है, मून को डेवलप करना है। मून को डेवलप करने से क्या होगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट काम करेगा, एक ही तरफ मतलब आगे बढ़ोगे। जिसके लिए आपको मोती पहनना है, सच्चा मोती, ओरिजिनल मोती पहनना है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी पहनना है। दोनों बनाकर पहन, इंशाल्लाह ताला हम जो बता रहे हैं उस बिजनेस में आप आगे बढ़िएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। 2016 अगस्त के बाद अच्छी जिंदगी रहेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं दुनिया की जानी माज़नी अजीम शख्सियत और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जिम के नाम से जानने वाले डॉक्टर MM रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं शबाना बात कर रही हूँ लखनऊ से, यूपी। जी शबाना साहब लखनऊ से बात करेंगे, आपको अपने बारे में बात करना है? जी अपने शोहर के बारे में पूछना है। जी शोहर का नाम बताइए। इससे पहले शायद गालिबन आप कॉल कर चुकी हैं। जी नहीं, अच्छा जी, शोहर का नाम बताइए। कनेक्ट नहीं हुआ था सर, बहुत बार करी कॉल बट कनेक्ट नहीं हुआ। जी शोहर का नाम बताइए। सैयद राशिद अली। सैयद राशिद अली। तारीख पैदाइश बता दीजिए। 15 दिसंबर 1982। वक्त कुछ मालूम है आपको? वक्त और दिन याद नहीं। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम शबाना साहिबा। वालेकुम सलाम सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा शो है सर आपका, मैं सैटरडे संडे 2 दिन भी देखती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों के देखने से तो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में मशहूर हुए प्रोग्राम। दिसंबर 15 1982 है ना? जी सर, दिसंबर 15 1982। ओके, हस्बैंड के बारे में जानना है। जी सर, ये बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं, एजुकेटेड है बट बाहर जाने का हो रहा ही नहीं है, तो क्या करना मुझे? ये एजुकेटेड है, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार आपकी सास से पूछ लीजिए, इनका जन्म हुआ है अमावस के दिन, उर्दू की 28 की शाम होगी, 29 की सुबह होगी, उस समय इनका जन्म हुआ है। थोड़ा उसको अमावस दोष कहा जाता है, क्योंकि चांद और सूरज मिल जाते हैं। चांद को कहा जाता है पानी की किस्मत रखने वाला, पानी की किस्म रखने वाला। सन को कहा जाता है आग। आग और पानी में कभी दोस्ती होने वाली नहीं है। तो क्या हो रहा है आपके हस्बैंड में? आप उन्होंने ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ काम भी हाथ को नहीं मिल रहा, परेशानी और डिस्टर्ब हो रहा है। जॉब में भी सेटलमेंट नहीं है, अनसक्सेसफुल हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं, फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकलने के लिए मून को डेवलप करना है, सन को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको करना है एक मोती साथ में एक रूबी दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला 2016 अक्टूबर में इसी साल में इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, वो भी गल्फ कंट्री के लिए मुफीद रहेगा। जाकर अच्छे से नौकरी कर सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है शाहिदा, मेरी बेटी का नाम है आलिया। तो आलिया के बारे में बात करना आपको? जी जी, आलिया के बारे में बात उनकी करें। तारीख पैदाइश बता दीजिए। उसकी पैदाइश तारीख है 17 जनवरी जी। 1983। वक्त कुछ मालूम है आपको? सुबह के टाइम आजान के बाद हो गई। ठीक है, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी डॉक्टर साहब। कब हो जाएगी? सलाम अलैकुम शाहिदा साहिबा, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। कश्मीर से बोल रही हैं आप? जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है आपकी बेटी का, उनका जन्म हुआ है मंडे के दिन। वालेकुम सलाम। आप आराम सुनिएगा, आराम से। मंडे के दिन जन्म हुआ है। थोड़ा उनका जो जायचा अगर देखा जाए तो कॉपरिकॉर्न का है, जिसके अंदर सन बैठा हुआ है। 8वें घर का मालिक एसेंडेंट में बैठना थोड़ा पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। बच्ची को 33 ईयर्स हो चुके हैं, लाइफ में अभी तक शादी नहीं हुई है। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा बच्ची में मोटापन रहता है, थोड़ा मुश्किलात हैं। प्रॉब्लम क्या है? सैटर्न खराब है, साथ में मेर्क्यूरी खराब है। जो मेर्क्यूरी खराब हो जाता है तो ट्रबल में डाल देता है, स्टेबिलिटी को छीन लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता। साथ में सैटर्न खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हर काम में रुकावटें आती हैं, डिले होता है। आज का काम कल के लिए, कल का परसों, इससे थोड़ा मुश्किलात हो रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक नीलम पहनाना है, ब्लू सफ़ेर कहा जाता है। साथ में एक अमराल पहनाना है, पन्ना कहा जाता है। मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। पहनाने के बाद 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? शबाना साहिबा, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी शबाना महाराष्ट्र से बात कर रही हैं। कौन से शहर से महाराष्ट्र के? जलगांव। जलगांव। अपने बारे में बात करना आपको? मैं लड़की के बारे में। लड़की के बारे में पूछना है। लड़की का नाम बताइए। महरीन गोहर। महरीन गोहर। महरीन गोहर। वक्त बताइए उनका, तारीख पैदाइश बताइए, वक्त बताइए। तारीख 6/9/1997। वक्त बता दीजिए। सुबह 7 साढ़े 7 बजे का। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शबाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। हमने पहले भी बड़ी लड़की के लिए मंगवाए पर अभी तक से नहीं आया। कब मंगाए थे आप? क्या प्रॉब्लम था उनका? वो मुबशिरा मुबशिरा के लिए क्या मतलब प्रॉब्लम क्या था उनका?
वो शादी का बताएंगे आपको, 2 शादियाँ। हाँ, प्रॉब्लम है, 2 शादी हमने बताया था ना, इंशाल्लाह इस अगस्त में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, तो वो मतलब उसका तो हमने मंगवाया है, वो अभी तक नहीं आया। ये दूसरी लड़की के बारे में पूछना है। तो अभी तक स्टोन मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला नहीं है अभी, मतलब वापस चले गए ना वो। ओके, तो आपने ऑर्डर किया है, अभी तक मिला नहीं आपको? हाँ, वो इंशाल्लाह ताला वापस पहना है, इंशाल्लाह पहना है, मिल जाएगा। क्योंकि हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा नहीं आपको। नहीं, ये दूसरी लड़की के बारे में पूछना है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बता देंगे। जैसे कि आपने ये दूसरी मेहरीन गौर के बारे में पूछना है। क्या जानना है बच्ची के बारे में? ये इसके बारे में जानना है। ये अभी मतलब 12th का एग्जाम दी उसने, और ओके। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। बच्ची का जन्म हुआ है सैटरडे के दिन, मालूम है आपको? बच्ची का जन्म हुआ है हफ्ते के दिन। उनका असेंडेंट है विरगो का। विरगो में जो है वीनस को नीचा स्थान बताया गया है, तो नीचे बैठा हुआ है। बच्ची में अगर पढ़ाई के बारे में बता दूं तो सीए कर सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भेज सकते हैं, या आप मैनेजमेंट में भेज सकते हैं, फिनांस में भेज सकते हैं। अकाउंट्स फील्ड भी मुफीद रहेगी, मैनेजमेंट भी उनके लिए मुफीद रहेगा। लेकिन बच्ची का क्या हो रहा है, थोड़ा मेमोरी पावर में कमी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, टाइम पर पढ़ती नहीं, थोड़ा सुस्त महसूस कर रहे हैं। 1 साल से थोड़ा परेशान है ये, और 3 साल आगे बढ़ने वाला। अभी तो टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का। इससे बाहर निकलने के लिए आप एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफेद, दोनों बनाकर पहना है, इंशाल्लाह ताला खुशी मिलेगी। आपको तो मालूम है, ऑलरेडी आपने मंगाया है, अभी तक आपकी बेटी का मिला नहीं है, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। क्योंकि थोड़ा आप जहां पर हैं वहां पर जाने के लिए 3-4 दिन तो टाइम तो लगता है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले उन्होंने मंगवाया है, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अपनी बेटी का मंगा कर पहनाइएगा। उनके लिए आप याद रखिएगा, उस बच्ची के लिए अकाउंट्स फील्ड मुफीद रहेगी, या तो मैनेजमेंट फील्ड में आप भेज सकते हैं। ये पहनाने के बाद बच्ची खुशहाल रहेगी, थिंकिंग पावर सोच बढ़ जाएगी, टैलेंट बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल मिलेगा, प्लानिंग मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं शफीउद्दीन बात कर रहा हूँ, भोपाल महाराष्ट्र से। शफीउद्दीन। हाँ जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। हाँ सर, मुझे मेरे फादर के बारे में पूछना है। जी, अब्बू का नाम बताइए पहले। हमारे अब्बू का नाम मोहम्मद हबीबुद्दीन अंसारी। मोहम्मद आबिदुद्दीन अंसारी। हबीबुद्दीन। हबीबुद्दीन। हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कुछ मालूम है उम्र? हाँ सर, उनके डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1963। 6/7/1963। 1963। कुछ वक्त मालूम है? हेलो जी, वक्त बताएंगे, वक्त पैदाइश का वक्त? हाँ सर, उनका वक्त पता नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम शफीउद्दीन साहब। हाँ सलाम सर। वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हबीबुद्दीन अंसारी। हाँ सर, मैं बहुत दिन से आपके शो में सर कॉल कर रहा था, लेकिन सर आज मैं शो में कॉल लग गया सर। मैं बहुत सुबह आपका करता हूँ सर, आपका शो सर बहुत ही अच्छा है सर, बहुत बहुत तारीफ की है सर आपके शो से, बहुत काम है सर तारीफ। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का प्रोग्राम देख रहे हैं आप। सबसे पहले बता दो, आपकी डैडी की हेल्थ कैसी रहती है? हाँ सर, उनकी हेल्थ सर अभी खराब रहती है सर। उनका सर दूसरे मैच में उनको डायबिटीज हो गया सर, अभी सर हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं रहती सर। समझ गया मेरे भाई, इसीलिए तो मैं पूछा, क्योंकि आपने जो कहा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा है तो हेल्थ में खराबी है। 2011 से बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ चुकी है, घर में परेशानी चल रही है। डैडी को खुश रहने के लिए, कामयाब रहने के लिए एक रूबी साथ में एक मोती दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले उसमें क्या होगा, हिम्मत मिलेगी, आगे बढ़ सकते हैं, ताकत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। मोती से क्या होता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। जैसा कि आपने कहा, मैं ट्राई करता हूँ फ़ोन लेकिन नहीं मिल रहा है। लाइन मिलने का मतलब है ज़िंदगी का चेंज होना। जब परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होते हैं, उससे इंसान बाहर निकलने के लिए तदबीरें ढूंढता है। उस तदबीरों में से एक तदबीर का नाम है जवाहरत करिश्मा, जहाँ पर आप लोग फ़ोन लगाते हैं, कॉल लगाते हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम देखते हैं लाखों लोग। हम अटेंड करते हैं 15 से 20 कॉल, तो 15 से 20 कॉल लोग जिसकी लाइन मिल जाती है, समझ लिया उसकी ज़िंदगी में खुशी मिल गई, कामयाबी मिल गई। क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। नेमतों में इससे पहले मैं कहा, शुरुआत में कहा था, जवाहरात जन्नत की नेमतों में से भी हैं, इस दुनिया की नेमतों में से भी हैं। इस जवाहरात का अपना इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। हमने लास्ट वीक की एक बताया था सुलेमान पैगंबर का, तो बहुत से नाज़रीन ने ख्वाहिश किया, बहुत से कॉल्स भी आए मेरे को, एक बार बता दो, हमने सही से सुना नहीं। जब सुलेमान पैगंबर को अंगूठी मिली, सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जब अंगूठी मिली,
तो अंगूठी पहनने के लिए उनके पास इतनी ताकत अल्लाह ने बख्शी थी कि वो अपने आज़ा से बात कर सकते थे, अपने जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उससे बात करते थे। अंगूठी को लिया, हाथ को देखा, उंगलियों से कहा, अरे उंगलियों बताओ कि मैं आपको कहाँ किस उंगली में पहनूं। तो अंगूठा कहता है, अरे अल्लाह के नबी, मैं तो चेयरमैन हूँ, मैं तो सरपंच हूँ, मैं पंजे की जीनत हूँ, मेरे बगैर पंजा नहीं रहेगा, तो मेरे हाथ में पहनिएगा, मतलब मेरे अंगूठे में पहनिएगा। तो कलमे की उंगली, सेकेंड उंगली कहती है, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कलमे की उंगली हूँ, मैं शहादत देने वाली हूँ, मैं गवाही देने वाली, तुम अल्लाह के रसूल हो, तो मेरी उंगली में पहनिएगा। तीसरी उंगली कहती है, सबसे आला हूँ, मैं सबसे लंबी हूँ, ऊंचा मकाम रखती हूँ, तो मेरे में पहनिएगा। चौथी उंगली कहती है, मैं दिल के राज को जानने वाली हूँ, मेरे उंगली की जो रग है, रग दिल से मिली हुई, इसीलिए हमारे यहाँ जो होता है रसूम जो होते हैं, एंगेजमेंट की रिंग जो दुनिया भर में रिंग फिंगर पहनाई जाती है, क्योंकि दिल से कनेक्शन होता है। तो चौथी उंगली कहती है, मेरा जो रग की कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन है, दिल के राज को जानने वाली हो, तो मेरे में पहनिएगा। पांचवी उंगली खामोश हो जाती है। सुलेमान पैगंबर पूछते हैं, अरे छोटी उंगली क्या हो गया, तू खामोश है? कहती है, मैं तो अदनासी हूं, मैं क्या कहूं, सरपंच तो अंगूठा बन गए, शहादत की उंगली तो दूसरी उंगली बन गई, सबसे आला तो बीच की उंगली है, चौथी तो दिल का राज जानने वाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं छोटी हूं। बहुत हिरास हो जाती है। तो आवाज खुदरत आती है, सुलेमान, उस अंगूठी को छोटी उंगली में पहनो। जो छोटी उंगली में पहनते हैं, हुक्म खुदा बहुत से उनके ऊपर हुकूमत मिलती है। उनकी हुकूमत जिन्नों के ऊपर थी, इंसानों के ऊपर थी, तमाम दुनिया की जितने भी मखलूक़ात थी उनके ऊपर हुकूमत। ये हिसाब से उस जमाने से चला आ रहा है ये अंगूठियों का रिवाज। तमाम अनबिया कराम ने अंगूठियां पहनी हैं, तमाम औलिया कराम ने अंगूठियां पहनी हैं। अंगूठी का पहनना सुन्नत नबवी है। हमारे यहाँ बहुत से रिवायात हैं, बहुत से अहादीस हैं, बहुत सवाब भी रहेगा। अंगूठी में क्या होता है, सबसे पहला सवाब भी रहेगा, हमारी परेशानी दूर होगी, मुश्किलात दूर होंगे, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात का करिश्मे ने लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेके आई हैं, क्या खुशियाँ लेके आई है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों का क्या कहना है, लोगों की ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो गई है, खुशहाली उनकी ज़िंदगी में आई है, लोगों का क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फानी, और इस जहान फानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त, तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं। ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर
तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर व मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life, only one visit can change your life। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की वजह से लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से खुशहाली आई है। एक आम आदमी से लेकर एक मिनिस्टर तक का क्या कहना है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप तशरीफ़ लेके आइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुनीर अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। मुनीर अहमद जी कश्मीर से। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए मुनीर साहब। जी पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, और जो MM रजा साहब है, जवाहरत का करिश्मा प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा है। और मैं ये रजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कभी कश्मीर भी आए इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कश्मीर से बहुत कागज आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। जी जी बेशक बेशक। कश्मीर में हमारे बहुत से नाज़रीन हैं देखने वाले, और आज भी हमारे 2-3 भाइयों ने कॉल भी किया है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए शब्बीर साहब। जी मेरा तारीखी पैदाइश है 29 जनवरी 1988। वक्त कुछ बताएंगे मुनीर साहब?
वक्त सुबह 2 बजे से 4 बजे के करीब होगा, 2 से 4 बजे के करीब। ठीक है जी, आपकी खुश नसीबी है मुनीर साहब के आप डायरेक्ट आज बात कर सकते हैं डॉक्टर एमिर रजा साहब से। जी रजा साहब। सलाम अलैकुम मुनीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम सर, आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी गुजारिश है कि आप भी कश्मीर आ जाइए प्रोग्राम के लिए। जरूर इंशाल्लाह, जरूर जरूर। बहुत से लोगों ने दावत किया, मदू किया है हमें, इंशाल्लाह हम प्लान बनाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मशकूर हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है आपको, और आपने हमें मदू भी किया है, हमें बहुत खुशी लगती है। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं आप ज़िंदगी खुशहाल रहें। जैसे कि जो डेटा बर्थ दिया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइफ में थोड़ा आपके डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। हाउस ऑफ अर्निंग जिसको कहा जाता है, पैसा कमाने का प्लेस जिसको कहा जाता है, थोड़ा मुश्किलात में है। अभी तक आपकी सर्विस सेटलमेंट नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, साथ में फाइनेंशियली मतलब डेवलपमेंट भी नहीं है और थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तरक्की की राह भूल चुके हैं, मुश्किल में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक रूबी पहनना है, साथ में एक मोती पहनना है, याकूत और मोती कहा जाता है। इंशाल्लाह दोनों बनाकर पहन जिंदगी खुशहाल रहोगे। इंशाल्लाह देखेंगे, हम कोशिश करेंगे हम वहाँ पर आने की और वहाँ पर मकाम बनाने की इंशाल्लाह ताला। वहाँ पर एक ब्रांच ओपन करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। बहुत से लोग मदू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला देखेंगे, अल्लाह की मर्जी है। अगर हो सके तो हम तो हैं खिदमत खल्क के लिए इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी पहुँचेंगे, इंशाल्लाह ताला लोगों की सर्विस देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए जनाब। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।